خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔ ناظرین آداب، خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان فیاض احمد فیاض۔ پہلی سرخیاں۔ قانون ساز اسمبلی میں پہلگام دہشت گردانہ حملے کی مذمتی اور تعزیتی قرارداد اتفاق رائے سے پاس۔ قرارداد میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی میں خلل ڈالنے اور ترقی کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرنے کے ناپاک عزائم کو شکست دینے کا کیا گیا عہد۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کی پہلگام حملے کی مذمت، کہا کشمیریوں کی ہمت اور حوصلہ خراج تحسین کے لائق۔ پہلگام دہشت گردانہ حملے کے تناظر میں بھارت نے کی پاکستان کی 16 یوٹیوب چینلز پر عائد پابندی، اور جموں کشمیر میں اگلے 2 سے 3 دن کے دوران موسم خشک اور گرم رہنے کا امکان، جموں خطے میں گرمی کی شدید لہر پیدا ہونے کی پیشگوئی۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی نے آج بیسرن پہلگام میں دہشت گردانہ حملے کی مذمتی اور تعزیتی قرارداد اتفاق رائے سے پاس کی۔ اسمبلی اسپیکر عبدالرحیم راتھر نے زبانی ووٹ کے بعد قرارداد کو لانے کی اجازت دی۔ اس کے بعد نائب وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری نے ایوان میں قرارداد کو پیش کیا، جو بعد میں یک زباں ہو کر اسمبلی میں پاس کی گئی۔ اس سے پہلے قانون ساز اسمبلی کا اجلاس شروع ہوتے ہی گزشتہ ہفتے کے پہلگام سانحے میں ہلاک ہونے والوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے 2 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ اس کے بعد نائب وزیر اعلیٰ کی طرف سے ایوان میں قرارداد پیش کی گئی، جس میں پہلگام دہشت گردانہ حملے پر دکھ اور غم غصے کا اظہار کیا گیا۔ اس حملے میں 16 افراد مارے گئے تھے۔ مذکورہ قرارداد میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی میں خلل ڈالنے اور ترقی کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرنے کے ناپاک عزائم کو شکست دینے کے لیے پختہ عزم کے ساتھ لڑنے کا عہد کیا گیا۔ نائب وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ایوان 22 اپریل کو پہلگام میں بے قصور عام شہریوں پر وحشیانہ اور غیر انسانی حملے پر دکھ کا اظہار کرتا ہے۔ ایوان میں گھوڑے بان سید عادل حسین شاہ کی عظیم قربانی کا بھی تذکرہ کیا گیا، جنہوں نے دہشت گردوں کے حملے سے سیاحوں کو بچانے کی کوشش کرتے ہوئے اپنی جان نچھاور کر دی۔ قرارداد پر مختلف پارٹیوں کے ممبران نے بولتے ہوئے اسے ایک بزدلانہ حرکت قرار دیا۔ ایوان میں لیڈر آف اپوزیشن سنیل شرما نے کہا کہ اس طرح کے واقعات کا مہذب قوم میں کوئی جگہ نہیں ہے اور اس کی مذمت ہر ایک ذی شعور انسان کرے گا۔ کانگریس کے غلام احمد میر، پیپلز کانفرنس کے سجاد غنی لون، سی پی آئی ایم کے ایم وائی طارقامی، نیشنل کانفرنس کے الطاف احمد وانی، پی ڈی پی کے وحید الرحمان پرہ اور عام آدمی پارٹی کے معراج ملک نے بھی قرارداد پر بولتے ہوئے اس دہشت گردانہ حملے کو ملک کے بھائی چارے پر ایک حملہ قرار دیا اور مذمت کی۔ بعد میں اسپیکر نے ایوان کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا۔ اسمبلی سے متعلق چند دیگر خبریں اس وقفے کے بعد۔ محبت وہی جو دل سے ہو، بات وہی جو دل سے کہی جائے، دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے۔ دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے۔ اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔ آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے۔ اسمبلی میں پہلگام سانحے پر تعزیتی قرارداد پر بولتے ہوئے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا کہ یہ پہلا ایسا موقع ہے جب جموں کشمیر کے لوگوں نے ایک ایسے انسانیت سوز واقعے کے خلاف یک زباں ہو کر مذمت کرنے کے لیے اپنی آواز از خود بلند کی، اور جس میں نہ ان کو کسی سیاسی جماعت یا سرکاری حکم نے ایک ساتھ مل کر کھڑا ہونے کے لیے کہا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ جس دن یہ حملہ ہوا وہ دن نہایت ہی افسوسناک تھا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آج کے بعد دہشت گردی کا پوری طرح سے خاتمہ ہو۔ انہوں نے پولیس کنٹرول روم کے دورے کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وہاں لاشوں کو دیکھ کر اتنا دکھ ہوا کہ الفاظ ہی نہیں ہے بیان کرنے کے لیے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ سانحہ اگرچہ بڑا ہے اور جس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے، تاہم وادی کشمیر میں سیاحتی سرگرمیاں جاری رہیں گی اور سیاح یہاں کا لطف اٹھانے کے لیے جوک در جوک آئیں گے۔ ملیٹنسی، ٹیرر، دہشت، آتنکواد، اس کا خاتمہ تب ہوگا جب لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے، اور یہ اسپیکر صاحب اس موقع کی شروعات ہے۔ اب ہم اس موقع پر احتیاط سے قدم جو ہے ہمارے طرف سے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھنا چاہیے جس سے کہ ہم لوگوں کو اپنے سے دور کریں۔ کوئی ہمارے طرف سے ایسی بات نہیں ہونی چاہیے یا کوئی ایکشن ہمارے طرف سے
जिससे ये जो अपने आप में पैदा हुआ इसको कहीं तक पहुंचे। हम बंदूक के जरिए मिलिटेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं, उसको खत्म नहीं कर सकते। खत्म तब होगा जब लोग हमारे साथ होंगे, और आज लगता है कि लोग अब वहां तक पहुंच रहे हैं। स्पीकर साहब, मस्जिदों में जुमा नमाज से पहले 2-2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। जामा मस्जिद श्रीनगर, ये शायद बाकी मुल्क में लोग इतना इस चीज को समझेंगे नहीं। आप और मैं समझते हैं ना, हम समझते हैं किसी हमले के बाद उस मस्जिद में 2 मिनट की खामोशी का मतलब क्या है। तो मेरी तो सिर्फ यही कोशिश रहेगी कि इस सिलसिले को हम बढ़ाएं, घटाएं नहीं, कम ना करें। कानून साज असेंबली के स्पीकर अब्दुर्रहीम राथर ने भी पहलगाम सानही पर सदमे का इजहार करते हुए कहा है कि ऐसे बुज़दिलाना वाकयात की जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। उन्होंने 26 सयाहों बशमूल मकामी शहरी की दहशतगर्दों के हाथों हलाकत को काबिल अफसोस करार देते हुए उनके लवाकीन से इजहारी यकजहती किया। सीनियर बीजेपी लीडर रविंदर रैना ने आज कंडी कपाड़ा जाकर गुलाम रसूल मागरी के अहल खाना से तज़ियत की और उनकी ढारस बंधाई। उन्होंने गमज़दा खानदान से तज़ियत का इजहार करते हुए कहा कि पूरा मुल्क उनके गम में शामिल है और वह बीजेपी की पूरी पार्टी की तरफ से उनके साथ हमदर्दी का इजहार कर रहे हैं। उन्होंने लवाकीन को यकीन दिलाया कि इस कत्ल में मुलव्विस बंदूक बरदारों को कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा ताकि दोबारा ऐसा वाकया पेश न आ सके। वाज़ह रहे, गुलाम रसूल मागरी को गुज़श्ता शब नामालूम बंदूक बरदारों ने अपनी गोली का निशाना बनाया था। जिला इंतजामिया बांडीपोरा ने गुरेज इलाके में एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से जंगबंदी की खिलाफवर्जी के खदशे के पेश नजर 50 के करीब कम्युनिटी बैंकरों को तैयार रखा है ताकि इन बैंकरों में इमरजेंसी के दौरान लोग पनाह ले सकें। जिला इंतजामिया ने कहा कि इन इकदाम के साथ साथ वो दूसरे इकदाम भी कर रहे हैं ताकि लोगों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। इस दौरान पूंछ सेक्टर में भी एलओसी पर पाकिस्तानी फौज ने गुज़श्ता शब एक बार फिर से जंगबंदी की खिलाफवर्जी करते हुए भारतीय चौकियों पर बिला इश्तिआल गोलाबारी की और तनाव में इजाफा किया। फौजी तर्जुमान ने बताया कि भारतीय फौज ने पाकिस्तान की इस गोलीबारी का मौसर तौर जवाब दिया। फौज के मुताबिक गोलीबारी में किसी भी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। मिलते हैं एक और वक्फे के बाद। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। आपका एक बार फिर खैर मकदम है। बारामूला के उड़ी सेक्टर में भी एलओसी के नजदीकी इलाकों में आर पार कशीदगी पैदा होने के बाद इलाके में कायम कम्युनिटी बैंकरों को काबिल कार बनाने के लिए काम शुरू किया गया है ताकि किसी भी इमरजेंसी की सूरत हाल में इनके इस्तेमाल पर में कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। भारत ने पाकिस्तान के जियो न्यूज, ARY न्यूज, समा टीवी, डॉन न्यूज समेत 16 यूट्यूब चैनल्स पर पाबंदी आयद कर दी है। ये इकदाम पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के तनाजुर में भारत के खिलाफ गलत इत्तलात फैलाने, भारतीय फौज और सिक्योरिटी एजेंसियों के खिलाफ झूठे और गुमराह कुन बयानात फैलाने की पादाश में आयद की गई है। इसके अलावा भारत ने BBC की उस रिपोर्ट पर भी अफसोस का इजहार किया है जो उसने पहलगाम हमले के बारे में तैयार की है। बॉलीवुड के मारूफ प्रोड्यूसर और अदाकार अतुल कुलकर्णी ने कहा है कि पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बावजूद वो वादी की सैर व तफरीह के लिए आए हैं ताकि इस दहशतगर्दाना हमले के आकाओं के असल मकासद को शिकस्त दिया जा सके। उन्होंने मुल्क के अवाम से अपील की कि वो भी सैर व तफरीह के लिए लगातार यहां आते रहें। सयाहती मकाम गुलमर्ग में इस वक्त सयाहों का रश देखा जा सकता है। सयाह गंडोला के जरिए कोंगडूरी और अफरवट के पहाड़ों पर मौजूद बर्फ से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। सयाहों का कहना है कि वो कश्मीर बार बार आना चाहते हैं और वो यहाँ की मेहमान नवाजी के अलावा यहाँ के कुदरती हुस्न से बेहद मुतासिर होते हैं। हम लोग अटैक के सेकेंड डे आए थे 23rd को,
फिर भी हमारे जो ड्राइवर थे उन्होंने हम लोगों को काफ़ी तसल्ली दी कि कोई मसला नहीं, आप आ जाओ। और आने के बाद भी हम लोगों को काफ़ी मतलब सेफ ही फील हुआ है। अब तो कुछ जो न्यूज़ पे दिखाया जाता है उतना तो है नहीं, तो सेफ है। कश्मीर आया हूँ, माय फ्रेंड्स दे कीप ऑन कॉलिंग मी, अरे कैसा है वातावरण, क्या करने का, अपने को आने का कि नहीं। आई यूज्ड टू ऑलवेज लाफ एंड टेल देम भाई टेंशन मत लो, इधर एकदम सिक्योर्ड फील हो रहा है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि अनबिलीवेबल जो कश्मीरी पीपल का जो अपने को सपोर्ट है, एनी टाइम ऑफ द डे दे आर ऑलवेज देयर फॉर यू। तो आप लोग टेंशन मत लो, प्लीज डोंट कैंसिल योर ट्रिप्स, कीप ऑन कमिंग टू कश्मीर। एंड आई हैव बीन टू स्विट्जरलैंड and this is out of this world. Kashmir and this Gulmarg, oh, this is out of this world. गणेशबल पहलगाम के रहने वाले सज्जाद भट्ट ने बहादुरी और इंसानी हमदर्दी की एक अजीम मिसाल उस वक्त पेश की जब गुज़िश्ता हफ्ते पहलगाम के बाइसरन में दहशतगर्दों ने हमला करके 26 सयाहों को हलाक और कई दीगर को जख्मी कर दिया। सज्जाद भट्ट, जो कि पेशे से शॉल बेचने वाला है, ने इस हमले में जख्मी हुए कई सयाहों को अपने कंधे पर उठाकर महफूज जगह पर पहुंचाने और उनकी जान बचाने में मदद की। दूरदर्शन न्यूज से बात करते हुए सज्जाद ने कहा कि मुझे अपने ज़मीर ने बुलाया और उसकी आवाज़ पर मैंने अपने घर आए मेहमानों को बचाने में मदद की। उस समय मतलब हमने देखा कि हमारे भाई वहाँ पे मतलब मदद के लिए तरस रहे। हमको जाना है कि हम इंसान हैं, एक इंसान का हक बनता है, फर्ज बनता है एक दूसरे को मदद करना। कि ये मतलब दिमाग में रखे हुए, ये बात हमने दिमाग में रखे हुए हम चले आए, वहाँ पे लोगों को मदद किया। हमने पहले प्रायोरिटी यही समझे कि जो अभी इंजर्ड है उनका जान बचाना है। बाकी हमने एक जो वहाँ पे घोड़े थे, उन घोड़ों पे बिठा के जो इंजर्ड थे उनको घोड़ों पे बिठा के पहलगाम अस्पताल की तरफ रवाना किया है। किसी को आधे को कंधे पे उठा के आधे रास्ते तक हमने पहुंचे, उनको पानी वानी पिलाया, उनको दिलासा दिया कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, हम लोग आए हैं। फिर हम और जो इंजर्ड थे, बाकी जो इंजर्ड थे उनको कंधे पे उठा के सीधा हॉस्पिटल की तरफ रवाना हुआ है। मरकजी सरकार ने 1967 अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत अवामी एक्शन कमेटी और जम्मू कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन नामी तंजीमों को गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस होने के सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर नोटिफिकेशन जारी की है। इस सिलसिले में नई दिल्ली के हाई कोर्ट ट्रिब्यूनल ने रवा माह की 17 तारीख को दोनों तंजीमों अवामी एक्शन कमेटी और जम्मू कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन के खिलाफ शोकाज नोट्स पहले ही जारी की थी। ग्रीन इनिशिएटिव कश्मीर के तहत आज दारा शकूब बाग बिजबिहाड़ा में एक शजरकारी मुहिम शुरू की गई। एक खसूसी मुहिम वादी के नामवर इस्लामी स्कॉलर और शोला बयां मुकर्रिर डॉक्टर समीर सिद्दीकी की सरबराही में अंजाम दी गई। उन्होंने इस मौके पर शजरकारी की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि हमें अपने और अपनी आने वाली नस्लों के लिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने पर ध्यान देना होगा ताकि हमारा माहौल साफ पाक रहने के अलावा आलूदगी के मुख्तलिफ मसाइल पर काबू पाया जा सके। उन्होंने तमाम मकातिब फिक्र के लोगों से अपील की है कि वो अपने अपने इलाकों में शजरकारी की मुहिम चलाएं और नौजवानों को भी इसकी तरफ रागिब करें। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर 24 घंटे के बाद ट्रैफिक की आमदरफ्त बहाल की गई। शाहराह के रामबन सेक्टर में सड़क पर मरम्मती काम जारी है और गुज़श्ता दिनों ट्रैफिक की आमदरफ्त को पूरी तरह से इसलिए रोका गया था ताकि हाल ही में सड़क को पहुंचे नुकसान के बाद उसकी दोबारा मरम्मत की जाए और उन जगहों पर सड़क को कुशादा किया जाए जहां बादल फटने से इसको शदीद नुकसान पहुंचा था। इसी दौरान ट्रैफिक हुकाम ने कहा है कि कल यानी 29 अप्रैल को गाड़ियों को श्रीनगर से जम्मू की तरफ जाने की इजाजत होगी। मुखालिफ समत में किसी भी गाड़ी को चलने की इजाजत नहीं होगी। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 2 से 3 दिन के दौरान मौसम खुश्क और गर्म रहने का इम्कान है। महकमे ने जम्मू खित्ते में दर्जे हरारत नॉर्मल से ज्यादा दर्ज होने की बात की है और कहा है कि दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 40 डिग्री भी पार हो सकता है। दूरदर्शन न्यूज से बात करते हुए मेट ऑफिस के एक ऑफिसर फारूक अहमद ने कहा कि जम्मू कश्मीर में 1 मई के बाद मौसम तब्दील होने का इम्कान है और कुछ मकामात पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश होने का इम्कान है। नाज़रीन, इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। चंद ही लम्हों के बाद दोबारा हाजिर होते हैं कानून साज असेंबली में आज हुई कार्रवाई का खुलासा लेकर। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।